Want to go Yamunotri? Here is a complete tour guide. Hello friends, it's Chehak. Join me in the journey of Yamunotri Dham. Registration link for Yamunotri Dham, which is mandatory for the darshan. You can start your journey from Dehradun or Rishikesh. In this eternal journey of Yamunotri, I will take you in a visit of Devbhoomi. यहाँ अनेक ऐसे पॉपुलर पिलग्रिमेज और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन हैं जिन्हें एक साथ कवर करना थोड़ा मुश्किल है। इस वीडियो में हम 4 धाम और उससे रिलेटेड कुछ स्पॉट्स कवर किए हैं। Here are some glimpses of Devbhoomi, Uttarakhand. Now it's time for tea break. तो चलते हैं हमारे इस रोमांचक सफर की ओर। यमुनोत्री के रास्ते में आपको 70 किलोमीटर पहले लाखामंडल मिलता है। हाँ, वही जहाँ लाक्षागृह में पांडवों के लिए दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। तो हमने भी लाखामंडल देख लिया। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। यू कैन विजिट हियर और गो टू यमुनोत्री धाम डायरेक्टली। क्योंकि हमने देहरादून से सुबह 7 o'clock की जर्नी स्टार्ट की थी एंड वी हैड इनफ टाइम, तो हमने सोचा अगर यहाँ आए हैं तो व्हाई नॉट टेक अ विजिट। और इस लंबी जर्नी में हमने अपना सेकेंड हॉल्ट लिया। लाखामंडल holds significant mythological importance, especially in connection with the Mahabharata, one of the India's great epics. Here are some key mythological aspects. Lakhamandal means lakhs of Shivlingas. Lakshagra conspiracy. According to the legends, Lakhamandal is the shrine in the site where Duryodhan, the prince of the Kauravas, conspired to burn the Pandavas alive in the wax house. The human figure sustains the person's life, while the demon figure guides the soul to Lord Vishnu's abode. Twin statues, Danav and Manav. Adjacent to the main temple, there are twin statues represent a demon and a human. 60 to 70 years earlier, it is believed that standing before their 2 statues can be momentarily bring a dying person back to life. These statues are believed to be the guardian of the temple. Some compares them to Jai Vijay, the gatekeeper of Lord Vishnu. The site is protected by Archaeological Survey of India. The cave adds to the mystical, adventurous appeal of Lakhamandal, making it a fascinating site for visitors. मैं और मेरा कज़न राजवीर ले चलते हैं आपको इस गुफा के अंदर। According to local legend, it is believed that the Pandavas used this cave to escape from Lakshagraha conspired by Duryodhan. यह गुफा साल भर ठंडा रहता है। कभी कभी ठंड में इस गुफा में एक प्राकृतिक धुंध देखी जा सकती है, अतः इसे धुंध ओदारी मीन्स गुफा भी कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ इस गुफा में बहुत छोटे से जगह में एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे वीडियो में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल था। लिटिल बिट ही महादेव दिख रहे हैं। पास ही एक छोटा सा नंदी भी है। टूवर्ड शिव जी। यहाँ इनका अभिषेक स्वयं प्रकृति के द्वारा होता है, जो बूंद बूंद करके शिवलिंग पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। The Yamuna river flows alongside the village, adding to its scenic beauty. छोटी 4 धाम की यात्रा में हमारा पहला पड़ाव आता है
Yamunotri Dham, then Gangotri, Kedarnath, and lastly Badrinath. यमुनोत्री और गंगोत्री का जल लेकर श्री केदारनाथ में भोले बाबा को अभिषेक करने के बाद हमारा लास्ट डेस्टिनेशन बद्रीनाथ होगा। यमुनोत्री is in the Barkot sub-district of Uttarkashi district. The distance between Uttarkashi to Yamunotri is round about 140 kilometers and from Rishikesh to Yamunotri is around 215 kilometers. यमुनोत्री दर्शन के लिए आप हनुमान चट्टी, फूल चट्टी या फिर जानकी चट्टी में आकर नाइट स्टे कर लेवे। Because trekking starts from Janki Chatti, so staying night here will be convenient to start trekking early morning. This is about 6:30 and we are starting our trek. जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का डिस्टेंस इज अराउंड 6.5 किलोमीटर्स, जिसमें से 1.5 किलोमीटर का रास्ता बाइकर लोग को चार्ज करके कवर कर देते हैं। अगर आप चाहें तो यह फैसिलिटी वहीं जाकर ले सकते हैं या फिर पूरे 6.5 किलोमीटर माउंटेन और नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हुए कर सकते हैं। यहाँ यमुनोत्री में पालकी, पोनी एंड पिट्ठू की भी फैसिलिटीज हैं। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तब से उत्तराखंड की छोटी चारधाम यात्रा को वामावर्त किया जाता है। इस भाई साहब को इतनी ठंडी में भी मस्ती सूझ रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है। It's so cold here. पुराणों के अनुसार कालिंदी अर्थात यमुना श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतर पटरानी भी है। अगर आपको यमुनोत्री ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है लाइक रजिस्ट्रेशन, स्टे, रोड अप्रोच एंड एक्सेट्रास, यू कैन कमेंट एंड आस्क। चारों तरफ स्पिरिचुअलिटी का एनवायरनमेंट होता है। आप थोड़ा रेस्ट करके आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। Yamunotri, the source of Yamuna river, is situated at an elevation of 3,291 meters in Garhwal Himalayas. The actual source of Yamuna river is Saptarishi Kund of Kalindi range, which is about 1 kilometer from Yamuna shrine of Yamunotri Dham. यमुना मैया की जय। क्योंकि यमुना जी सर्वप्रथम कालिंदी पर्वत से जल रूप में आई, अतः यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यमुना सूर्य कन्या है, अर्थात सूर्यपुत्री है। सूर्य की छाया तथा संज्ञा नामक दोनों पत्नियों से यमुना, शनिदेव तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना शनिदेव तथा यमराज की बहन है। भाई दूज पर यमुना जी के दर्शन तथा मथुरा में स्नान का विशेष महत्व है। यमुनोत्री की ट्रैकिंग कभी प्लेन तो कभी चढ़ाई वाली होती है, मीन्स मिला जुला है।
इसके साथ स्नैक्स, बिस्किट और रिफ्रेशमेंट सभी अवेलेबल होते हैं। देख रहे हैं ना आप, हमें वहां तक जाना है। The trek offers scenic view of waterfall and the surrounding mountains. रास्ते में कई छोटे छोटे मंदिर और रेस्टिंग पॉइंट होते हैं जहां while trekking if you are tired you can rest. रास्ते में टॉयलेट्स और मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है। Multiple waterfall in the surrounding. मंदिर के पास कुछ शॉप्स भी हैं जहां पूजन के प्रसाद तथा अन्य पूजन की सामग्री भी ले सकते हैं। यहां से आप यमुनोत्री धाम की पहली झलक देख सकते हैं। पौराणिक गाथा के अनुसार यह अशित मुनि का निवास था। टफ ट्रैकिंग के बाद जब आप यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं इज लाइक रिवॉर्ड। वहां पहुंचने के बाद जो मंदिर के दर्शन और सराउंडिंग आपको देखने को मिलते हैं तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। The temple was originally built by Maharani Guleria of Jaipur in 19th century. The temple has undergone renovation and reconstructions over the year. यमुना जी, कहा गया है कि जो व्यक्ति यमुनोत्री धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान तथा यमुनोत्री के पास स्थित खरसाली में शनिदेव के दर्शन करता है उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। खरसाली के शनिदेव के मंदिर का दर्शन हमने यमुनोत्री के दर्शन के बाद वापसी में किया। यह भैरव मंदिर है जो आपको यमुनोत्री के रास्ते में मिलेगा। Now it's time for return. During winters, the idol of goddess Yamuna is brought from Yamunotri to Kharshali due to the heavy snowfall that makes the Yamunotri shrine inaccessible. The journey is undertaken with the great reverence and care, ensuring that the idol is safely moved to Kharshali where it is worshipped during the winters. The process begins with elaborate rituals at the Yamunotri temple. Priests and devotees perform special ritual to seek blessing for a safe journey. This includes offering flowers, sweets and chanting hymns dedicated to goddess Yamuna. The idol of deity is placed in beautifully decorated palki and is carried by devotees along with the priest. Follows the palki singing devotional song and reciting prayers. This all is marked by a deep sense of devotion and spirituality. मैं और मेरी प्यारी माँ जी।
While returning, there is no need of pony, pittu or palki. Slope होने के कारण return was easy and full of fun. आप देख सकते हैं कि हम अब काफ़ी नीचे आ चुके हैं, जहाँ से नदी भी काफ़ी पास दिख रही है। पास ही एक ब्रिज भी है। Kharshali is considered the winter abode of goddess Yamuna, and the idol is kept at the Shani Dev temple in the village. Kharshali, which is like maternal home for Yamuna Ma. The practice ensures that the devotees can continue to pay their respect and seek blessing even when the main temple is closed due to weather conditions. यह खरसाली के शनिदेव का मंदिर है, means winter abode of Yamuna Ma. आगे बढ़ने पर गंगोत्री के मार्ग में हमें एक प्राचीन प्रकटेश्वर पंचानन महादेव का मंदिर नगलमहर गांव में मिला। लगभग 100 सीढ़ियों के बाद हमें मंदिर देखने को मिला। यह एक गुफा मंदिर है, जिसके लिए हम सीढ़ियों से नीचे उतरकर अंदर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। गुफा में प्रवेश करते ही वासुकी नाग के जोड़े का दर्शन और सीढ़ियों से उतरकर आप स्वयंभू पंचमुखी के दर्शन कर सकते हैं। शिव जी के दाई ओर माँ दुर्गा, गणेश जी का वाहन मूषक, कार्तिकेय का वाहन मोर आदि शिवलिंग के बाई ओर पंचामृत कुंड के दर्शन करते हैं। शिवलिंग के चारों ओर गुप्त गंगा के दर्शन करते हैं। गुप्त गंगा के ठीक ऊपर शेषनाग, हनुमान जी का विशाल गदा, बालक रूप हनुमान, शेर का पंजा, मगरमच्छ, ब्रह्म कमल आदि के दर्शन करते हैं। शिव जी के ठीक ऊपर आकाश गंगा, त्रिकोण शिव जी का जटा व गंगाधर महादेव का कैलाश पर्वत, जिसे केदार घाटी भी कहा जाता है, के दर्शन आप करते हैं। The trip starts for next destination, that is Gangotri.